अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेट चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 वर्जन के तहत रियासत का हदफ 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाना है। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी व शहरी एन उत्तम कुमार रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज रियासती सेक्रेटरीट में पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत मुख्तलिफ एक आला सतही इजलास की सदारत की। नई दिल्ली में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर व शहरी राम मोहन नायडू से मुलाकात करते हुए वरंगल और आदिलाबाद में आलमी मियार के हवाई अड्डे तामीर कराने की दरख्वास्त की। तेलंगाना में जारी वोटर नज़रसानी मुहिम खुसूसन हैदराबाद के 15 असम्बली हलकों में सुस्त रफ्तारी से जारी है और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए वोटर नज़रसानी की मुद्दत में तोसी का मुतालबा किया। बोनालू त्यौहार के लिए हैदराबाद पुलिस अलर्ट, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने हिदायत दी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राइजिंग 2047 वर्जन के तहत रियासत का हदफ 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाना है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना भारत की मजमूई कौमी पैदावार में अपना हिस्सा मौजूदा 5% से बढ़ाकर 10% तक ले जाना चाहता है। वज़ीर आला ने कहा कि आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए रियासत में अराज़ी की फराहमी सरमायाकारों के लिए और आलमी मियार का बुनियादी ढांचा फराहम किया जा रहा है। इन्होंने अमेज़न के डेटा सेंटर को एक संग मील करार देते हुए कहा कि यह मंसूबा भारत फ्यूचर सिटी की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा और आलमी कंपनियों, सप्लाई चेंजेस और मुतल्लिका सनतों को अपनी जानिब मुतवज्जो करते हुए तेलंगाना को आलमी सरमायाकारी का अहम मरकज़ बनाएगा। Our dream, our target, by 2034 we wanted to reach $1 trillion economy. By 2047 we wanted to reach $3 trillion economy. Whereas Government of India, Prime Minister of India has announced Viksit Bharat 2047. By 2047, Bharat government wants to reach $30 trillion economy. Today, my state population is 2.5% of this country, but our contribution of GDP is 5%. But my goal, my team target is that we wanted to increase our contribution in Indian GDP up to 10%. Today we are at 5%. Our target is 10% of the country GDP. For that, we need investments, we need infrastructure, we need employment. That is why Government of Telangana have decided to make a policy. That policy called Telangana Rising 2047. In that policy document, we have involved ISB, we have involved NELSER, we have involved Santanu Narayan, we have involved Ajay Banga, World Bank Chairman, we have involved Satya Nadella, we have involved former Reserve Bank Governor Ranganathan, we have involved international, whoever is expertism in this process. They have made a policy for Telangana to ease out, to single window, to give all permissions. So to give confidence to investors. So we have dedicated our policy in 2025 December. Now we are able to allot lands, we are able to give permissions. Now we are able to give incentives, whatever Government of Telangana has committed to all these corporate people. Now we are running to వంద సంవత్సరాల భారతదేశం స్వతంత్ర ఉత్సవాలను జరుపుకోబోతుంది
ఆ రోజుకి మనము 10% ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఈ దేశంలో రాణించాలని టార్గెట్ పెట్టుకొని ఈరోజు పనిచేస్తున్నాము. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు నిరంతరం మన అధికారులు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఈ ప్రభుత్వం అంతా కార్యోన్ముఖులై పనిచేస్తున్నారు. 2034 లోపల $1 trillion ఎకానమీకి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా అమెజాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఈ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా పనిచేయబోతుంది. తద్వారా ఎక్కడైతే అమెజాన్ ఉంటుందో దాని చుట్టూతా మిగతా చైన్ డెవలప్మెంట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, చైన్ సప్లయర్స్ అందరు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు. ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా మనం తీసుకుంటాం. तेलंगाना के वज़ीर आपाशी व शहरी एन उत्तम कुमार रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज रियासती सेक्रेटरीट में पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के मुख्तलिफ हिस्सों के नज़रसानी शुदा तखमीनों का जायज़ा लेने के लिए आला सती इजलास की सदारत की। इजलास में आपाशी और महकूमे ख़जाना के आला हुक्काम ने शिरकत की। मनसूबे के दायरे कार में तोसी, टेक्निकी जायज़ों की बुनियाद पर इजाफी कामों की शमूलियत और टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाइस लागत में इजाफे पर तफसीली गौर किया गया। वज़रा ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को मनसूबे पर मौसर अंदाज में पेश रफ्त और आइंदा इक़दामात के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। तेलंगाना में जारी वोटर नज़रसानी मुहिम खुसूसन हैदराबाद के 15 असम्बली हलकों में सुस्त रफ्तारी से जारी है। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने दावा किया है कि हैदराबाद ज़िला में अब तक औसतन सिर्फ 21% वोटर तस्दीक का अमल मुकम्मल हो सका है, जबकि इसके लिए सिर्फ 10 दिन बाकी है। पूनम प्रभाकर ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए वोटर नज़रसानी की मुद्दत में तोसी का मुतालिबा किया। इनका कहना है कि BLOs की जानिब से घर घर जाकर फॉर्म फराहम ना करने की शिकायत मौसूल हो रही है। इन्होंने हैदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेजों, सरकारी असातिज़ा और GHMC के ताउन से इस अमल को तेज़ करने की अपील की, ताकि कोई भी अहले वोटर अपने हक़ राय दही से महरूम ना रहे और जमहूरी अमल में मजबूत हो सके। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ జిల్లాలో 15 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఓటర్ల సవరణ నత్తనడకగా, స్లోగా, BLOలకు సరి అయినటువంటి మార్గదర్శకత్వం లేక, లేదా BLAలు కూడా సరి అయినటువంటి పని చేయకన కారణాలు ఏమైనా 15-20% కూడా కానటువంటి పరిస్థితి. ఇంకా 10 రోజుల గడువు మాత్రమే ఉంది. అందుకే మేమంతా గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, పార్టీ అధ్యక్షులము, మా ఎన్నికల కమిషన్ చూసే రాజేష్తో సహా అందరం కూడా ఎన్నికల కమిషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన కలిసినాం. ఈ సందర్భంగా వారికి విజ్ఞప్తి చేసినాం, హైదరాబాద్లో కొంత ఈ ఎన్నికల ఓటర్లకు సంబంధించినటువంటి సవరణ ప్రక్రియ వేగవంతంగా క్షేత్రస్థాయిలో జరిగే విధంగా BLOలకు అవసరమైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు హైదరాబాద్ చుట్టుముక్కల చాలా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 4500 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఇవి కాక మేడ్చల్ కావచ్చు, రంగారెడ్డి కావచ్చు, తెలంగాణ అర్బన్లో కొంత ఓటర్ల సవరణ సరి అయిన విధంగా జరగటం లేదు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాగా జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి అర్బన్ ప్రాంతాల్లో మరి మైగ్రేషన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే షిఫ్టింగ్ ఉండొచ్చు, సరి అయినటువంటి అనేక రకాల కారణాల వల్ల కావచ్చు. ఏదేమైనా మరి స్పందన తక్కువ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కొంత విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం కూడా తీసుకోమని కోరడం జరిగింది. మేము ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని విద్యాశాఖకు ఆదేశాలు ఇప్పించి వాళ్ళందరి భాగస్వామ్యాన్ని కూడా, ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసించే పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అర్హత కలిగిన ఓటరు కూడా కోల్పోవద్దని ముందు నుంచి కూడా మేము క్షేత్రస్థాయిలో మా పార్టీ నిర్మాణాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో అధికారుల పక్షాన కూడా అంతే ప్రోత్సాహం. మీరు ఇంతకుముందు మీరు పాత్రికేయులు కూడా BLOలు ఇళ్లకు రావడం లేదు, ఫార్మ్స్ సరైన విధంగా కలెక్షన్ చేయడం లేదు. माशरे में बढ़ते हुए कर्ज़ों और माली मुश्किलात पर इजहार ख्याल करते हुए तेलंगाना के वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि जो लोग कर्ज़ से आज़ाद हैं, इन्हें भी इस मसले पर खुलकर बात करनी चाहिए। इनका कहना था कि हुकूमत की फलाही स्कीमों और बुज़ुर्गों की मेहनत से हासिल होने वाली आमदनी के बावजूद अगर लोग कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह माली मनसूबा बंदी और अखराजात का गलत अंदाज है। इन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी अखराजात बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में दाखिल कराने की
दौड़ और जिस्मानी मेहनत से दूरी की वजह से लोग न सिर्फ माली मुश्किलात बल्कि सेहत के मसाइल का भी शिकार हो रहे हैं। वज़ीर ने आवाम से अपील की है कि सादगी और माली नज़्म व ज़ब्त को अपनाते हुए कर्ज से पाक और खुशहाल माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें। అప్పులున్న వాళ్ళు చేయొద్దండి, అప్పులున్న వాళ్ళు అంటే మరి ఇన్ని అప్పులు ఎట్టకెళ్ళి అక్క మీ ముత్తాతలు తాతలు తండ్రులు మీరు మీ పిల్లలు సేద్యం చేస్తున్నారు, కాయకష్టం చేస్తున్నారు, ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు రకరకాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సొమ్మంతా ఎక్కడ పోయింది? మళ్ళా మా ప్రభుత్వం ద్వారా పెన్షన్లు, పెట్టుబడులు, ఇండ్లు, రుణమాఫీలు, సన్నబియ్యాలు, బస్సులు రకరకాలు ఇవి ఇస్తా ఉన్నాం. మరి ఇవి అవి రెండు కలిపితే బ్యాంకులలో మీ ఖాతాలో నగదు మూలుగుతుండాలి. మీ మెడలలో 5 తులాలు 10 తులాలు బంగారం దగదగ మెరుస్తుండాలి. ఎవరి మెడలలో నల్ల పూసతాలే కనపడతా ఉన్నాయి, మెరుస్తలేవు. ఎక్కడ పోయింది? ఎవరు ఎత్తుకపోయిండ్రు? ఎవరు ఎత్తుకపోలే, మీ ఆలోచననే ఎత్తుకుపోయింది. ₹1 ఖర్చు పెట్టడం పెద్దలు సామెత చెప్పిండ్రు. ఏట్లేసినా రూపాయలు లెక్క పెట్టేయమన్నారు. మీరు ప్రతి రూపాయి ఖర్చు పెట్టే ముందు ఒకసారి ఆలోచన చేసి మన మనసు మనం ప్రశ్నించుకుని ఇది అవసరమా కాదా అని ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. అందుకనే ఇళ్ళకి సంబంధించి చెప్తా ఉన్నాం. అట్లనే ఇలా ప్రైవేటు చదువుల పేరు లక్షలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. మరి బాగా చెప్పేటోళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలకేమో గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు పంపుతలేరు, ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపుతా ఉన్నారు. ఆలోచన చెయ్యాలి. అట్లనే రోజు 1 గంట మనది కాదంటే నిండు 100 జీవితం మనదే. ₹1 ఖర్చు కాకుండా ఇలా ఏ దవాఖాన చూసినా కూడా ప్రైవేట్ దవాఖానా గవర్నమెంట్ దవాఖానా ఇసుకేస్తే రాలేదు జనం ఉన్నారు. ఎందుకు పాడైపోతా ఉన్నాయి? అందుకనే రోజు 1 గంట ఎగరడం ఎగరాలి, ఆడడం ఎగరాలి, దుంకాల ఈతను కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి. नई दिल्ली में तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू से मुलाकात करते हुए वरंगल और आदिलाबाद में आलमी मियार के हवाई अड्डे तामीर करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने कहा है कि वरंगल हवाई अड्डे शुमाली तेलंगाना के कई अज़ला के लिए एक अहम मरकज़ साबित होगा और इस MRO एयर कार्गो फ़्लाइट ट्रेनिंग जैसी जदीद सहूलियत से आरास्ता किया जाना चाहिए। उन्होंने मुतालिबा किया कि वरंगल एयरपोर्ट का काम 2 जून 2028 तक मुकम्मल किया जाए। मुलाकात के दौरान आदिलाबाद में भी एयरपोर्ट के क़याम, दोनों हवाई अड्डे के लिए ज़मीन की फराहमी और हुसैन सागर से प्रकाशम ब्रिज तक सी प्लान सर्विस शुरू कराने की तजवीज़ पर भी तबादले ख्याल हुआ। मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रिकॉर्ड मुद्दत में अराज़ी फराहम करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सताइश की और यकीन दिलाया कि वरंगल एयरपोर्ट का डिज़ाइन काकतिया तहजीब की अक्साई करेगा। हैदराबाद के रुकन मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी संगारेड्डी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद की उम्रे की सादत के लिए रवानगी के मौके पर इनके रिहाइशगाह हैदराबाद में एक मुख्तसर पुरवक़ार मुलाकात का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मिर्ज़ा फ़ताहुल्लाह बेग रियाज और उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन वरंगल एडिटर अपना वरंगल.com ने मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद से मुलाकात करते हुए इनकी गुलपोशी की, उम्रे की सादत पर दिली मुबारकबाद पेश की और इनके लिए उम्रे की मकबूलियत, सेहत व सलामती और खैरियत से वापसी की दुआ करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद रियाज अहमद चेयरमैन जेड न्यूज़ TV चैनल भी मौजूद थे। इन्होंने भी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद को उम्रे की सादत पर मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान फरमाए, उम्रे को शर्फ कबूलियत अता करे और इन्हें खैर व आफियत के साथ वतन वापस लाएँ। मुलाकात खुशगवार माहौल में मुनक़्क़द हुई, जहाँ बाहमी खैर सगाली दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। BRS के रहनुमा साबिक़ वज़ीर और बालकुंडा के MLA वैमुला प्रशांत रेड्डी को पुलिस ने इनकी मौजूदा गैर मुआयना भूख हड़ताल से कबल घर में नज़रबंद कर दिया। प्रशांत रेड्डी का इल्ज़ाम है कि निज़ामाबाद ज़िला के मुख्तलिफ इलाक़ों में पार्टी कारकुनों को भी हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया गया। प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर भोंगिल म्यूनसिपलिटी की तरक्की, 100 बिस्तर के हॉस्पिटल की तामीर और RTC डिपो की बहाली में लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो इन मुतालिबात की मंजूरी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरी जानिब पुलिस ने अमन व ईमान बरकरार रखने के पेश नज़र कार्रवाई किए जाने की बात कही है। బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ నమస్కారం. నేను భీమ్గల్లో 100 పడకల ఆసుపత్రిని పూర్తి చేయాలని, మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మంజూరు చేసి 75% పనిచేసిన పనులు అవి, ఒక 20-25% మిగిలిన పనులు
వంద పడకల ఆసుపత్రి కావచ్చు, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ కావచ్చు, అట్లనే మూతబడ్డ భీమ్గల్ బస్ డిపోని తెరిపేయమని, అట్లనే నేను మంజూరు చేసినటువంటి 12 కోట్ల రూపాయలతో సీసీ రోడ్లు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయని అప్పుడు కొబ్బరికాయలు కొట్టిరు, అవి ఇంకా పూర్తి చేయట్లేదు, అది పూర్తి చేయాలని చెప్పి భీమ్గల్లో ప్రజా సమస్యల కోసం ఆ పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని నేను ఈరోజు అంటే 15వ తారీఖు నాడు ఒకరోజు కఠోర నిరాహార దీక్ష, నీళ్లు కూడా ముట్టకుండా నిరాహార దీక్ష చేస్తా అని చెప్పి నేను చెప్పిన. అయితే నేను ఇవాళ నిరాహార దీక్షకు వెళ్ళాలని అంటే నేను స్నానం కూడా చేయకన్నా మొదలే, నేను నిద్ర కూడా లేవకన్నా మొదలే పోలీసులు నా ఇంట్లో చుట్టినారు, నన్ను బయటకు పోనీయరట, నన్ను ఇంట్లోనే అరెస్ట్ చేస్తా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు పోలీసులు. మరి ఇది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు. నేను చాలా అహింసా మార్గంలో, నేను రాస్తారోక చేస్తాను లేదు, ధర్నా చేస్తాను లేదు, నా ఇచ్చి నేను శిక్ష వేసుకొని ఒకరోజు నేను నిరాహార దీక్షలో కూర్చుంటా, అహింసా మార్గంలో కూర్చుంటానంటే ఈ ప్రభుత్వం నన్ను అనగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. మేము ప్రజల కోసం పోరాటం చేస్తున్నాం, ప్రజల సమస్యలు తీర్చమని చెప్పి నేను దీక్ష చేస్తాను తప్పిస్తే నా కోసం కాదు. ఆ హాస్పిటల్ పని పూర్తి చేయాలని, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ పనులు పూర్తి చేయమని, బస్ డిపో తెరిపియమని, సీసీ రోడ్లు పూర్తి చేయమని, భీమ్గల్ ప్రజల సమస్యలు, బాల్కొండ నియోజకవర్గ సమస్యలు చేయాలని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం తప్పిస్తే వేరేది కాదు. దీనికి నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళనీయకుండా పోలీసులు నా ఇంటి చుట్టూ, వందలాది మంది పోలీసులు నా ఇంటి చుట్టూ మొత్తం పారగాయడం అనేది ఎంత మట్టుకు సమంజసమో బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి. నేను ఒక ఎమ్మెల్యేని, ప్రజల పక్షాన పోరాడవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది, ప్రభుత్వం మీద. మరి వాళ్ళు వచ్చి నా దీక్షలో వచ్చి, దీక్షా శిబిరంకి వచ్చి మేము నెలలో పూర్తి చేస్తాం, 2 నెలల్లో పూర్తి చేస్తాం అని మాట ఇస్తే నేను దీక్ష విరమిస్తా కదా. దీనికి పెద్ద ఇంతెత్తున నన్ను అనగదొక్కాల్సిన అవసరం ఏమున్నది, నా గొంతు నొక్కాల్సిన అవసరం ఏమున్నది? కాబట్టి బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు, భీమ్గల్ పట్టణ ప్రజలు, భీమ్గల్ మండల ప్రజలు దయచేసి ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒక్క మాట మాత్రం నిజం, నన్ను ఇంట్లో పెట్టి అరెస్ట్ చేసినా నా దీక్ష కొనసాగుతుంది ప్రజల కోసం, ఆ సమస్యలు పూర్తి చేయడం కోసం. లేదు నన్ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో, నా పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టినా పోలీస్ స్టేషన్లో నా దీక్ష కొనసాగుతుంది, నా సత్యాగ్రహం కొనసాగుతుంది. లేదు నన్ను తీసుకుపోయి జైల్లో వేసినా జైల్లో కూడా నా సత్యాగ్రహం కొనసాగుతుంది, నా నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుంది తప్పిస్తే నేను పోరాటం ఆపేది లేదు అని చెప్పి నేను బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు చెప్తా ఉన్నాను. ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. నేను అహింసాయుతంగా ప్రజా సమస్యల కోసం నేను నిరాహార దీక్ష చేస్తా అంటే ఈ విధంగా నిరాహార దీక్షను భగ్నం చేయడం, నా ఇంటి చుట్టూ పోలీసులు పెట్టడం, ఎక్కడికక్కడ మా కార్యకర్తలను తీసుకుపోయి వాడు జైళ్ళల్లో వేస్తూ ఉన్నారు. నాకు సమాచారం వస్తూ ఉన్నది, అన్ని మండలాలలో మా కార్యకర్తలను తీసుకుపోయి జైళ్ళల్లో కూర్చుండబెడతా ఉన్నారు. అక్కడ భీమ్గల్లో వేసినటువంటి టెంటుని మొత్తం కూడా తీసేసినారు. చివరికి ఫ్లెక్సీలు పెట్టినారు మా కార్యకర్తలు, ఇవాళ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఫ్లెక్సీలు పెడితే ఆ ఫ్లెక్సీలు కూడా తీసేసే రాక్షస పని ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంత భయపడుతున్నారో అర్థమవుతలేదు. సింపుల్గా నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా ప్రజా సమస్యలు తీర్చమని అడుగుతున్నాను. ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరో ఒకరు వచ్చి మేము చేస్తాము, పూర్తి చేస్తాము, 1 నెలలో చేస్తాము, 2 నెలల్లో చేస్తాము అని చెప్పొచ్చు. మరి దానికి అది ప్రజలకు చెప్పకుండా, సమస్యలు పూర్తి చేస్తాం, పనులు చేస్తామని చెప్పకుండా నా గొంతు నొక్కినంత మాత్రాన ఈ పోరాటం ఆగదు. నేను ఎక్కడున్నా, నా ఇంట్లో ఉన్నా, నన్ను జైల్లో వేసినా, నన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో వేసినా, ఎక్కడ వేసినా నా ఇవాళ ఒకరోజు దీక్ష మాత్రం కొనసాగుతుంది. ప్రజలుగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, భీమ్గల్ పట్టణ యువత, కుల సంఘాలు, అట్లనే వీడీసీ సభ్యులు, అట్లనే భీమ్గల్ మండలంలో ఉన్నటువంటి యువత, అన్ని వర్గాల వారు ప్రజలు నా ఈ నిరాహార దీక్షకు మద్దతు తెలపాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. पेट्रोटेक व्यूज़ डेली के नुमाइंदा मोहम्मद महबूब अली ने मोहम्मद सिद्दीक अहमद मेंबर मीडिया एग्रीटेशन कमेटी संगारेड्डी से मुलाकात करते हुए अपना मीडिया एग्रीटेशन कार्ड हासिल किया। इस मौके पर मोहम्मद महबूब अली ने मोहम्मद सिद्दीक अहमद की उम्र की शहादत के लिए रवानगी पर इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और शाल पोशी व गुल पोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी चेयरमैन
जेड न्यूज़ टीवी चैनल और एडिटर पैट्रियोटिक व्यूज़ डेली भी मौजूद थे, जिन्होंने मोहम्मद सिद्दीक अहमद साहब के लिए कामयाब, बाबरकत और मकबूल उम्रे की दुआ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार आईपीएस ने बोनालू त्यौहार के मौके पर शहर भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत दी है। बंजारा हिल्स में वाक़ TGICC से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आला पुलिस अफसरान के साथ जायज़ा इजलास में इन्होंने कहा कि 16 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहने वाले बोनालू त्यौहार के दौरान गोलकुंडा, बलकमपेट, सिकंदराबाद और लाल दरवाज़ा समेत तमाम अहम मंदिरों में अक़ीदतमंदों की हिफाजत और पुरअमन माहौल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पुलिस कमिश्नर ने हिदायत दी कि टास्क फोर्स और एक्शन टीमों और मुकामी पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाए। ख़वातीन ज़ायरीन की हिफाजत के लिए सी टीम को खुसूसी तौर पर मुतहर्रिक रखने, जेब तराशी, मोबाइल और चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़ जैसे जराइम की रोकथाम और ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखने के अहकामात भी जारी किए गए। इन्होंने कहा कि बोनालू जुलूस पुरअमन अंदाज में मुकम्मल कराने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमे बाहमी ताउन से मौसर बंदोबस्त करें। हैदराबाद के KBR फ्लाईओवर मंसूबे का GHMC कमिश्नर आला सती अफसरान के हमरा तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर VC सज्जनार, ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान, जोनल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, SSB महकमे के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुआयने के दौरान फ्लाईओवर के मौजूदा रोड, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सड़कों की हिफाजत और मंसूबे पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलू का जायज़ा लिया गया। GHMC कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिक़ा महकमे को बाहमी राब्ते के साथ ज़ेर इल्तिवा मंजूरियों को जल्द मुकम्मल करने और मसाइल को फौरी हल करने और अवाम को कम से कम परेशानी के साथ मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। संगारेड्डी ज़िला ज़हीराबाद में मुसलसल बारिश ना होने और खुशहाली जैसे हालात के पेश नज़र शहर के उलमा व हुफ़ाज़ और ईदगाह कमेटी ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 3 रोज़ा नमाज इस्तिस्क़ा के इनेक़ाद का फ़ैसला किया। यह खुसूसी प्रोग्राम 18, 19 और 20 जुलाई 2026 को ज़हीराबाद ईदगाह मैदान में मुनक़्क़द होगा। हर रोज़ सुबह 7:15 से 8 बजे इस्लाही व हिदायती बयान होगा, जिसके बाद सुबह 8 बजे नमाज इस्तिस्क़ा अदा की जाएगी। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उम्मत मुस्लिमा की भलाई और मुल्क में खैर व बरकत के लिए खुसूसी दुआएं की जाएगी। मुंतज़िमीन ने ज़हीराबाद और अतराफ़ के तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो इस बाबरकत इज्तिमा में शरीक होकर अल्लाह ताला के हुजूर बारिश, रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करें। मीडिया से बात करते हुए मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासिमी, मुफ्ती खलील क़ासिमी ने इज्तिमा में शिरकत की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। शहरान ज़हीराबाद के मुसलमान और अतराफ़ के देहातों के मुसलमानों को इत्तला दी जाती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1.5 महीने करीब हो रहा है बारिश का मौसम शुरू होकर, लेकिन अभी तक खातिर ख़्वाह बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। तो उसी सिलसिले में नमाज इस्तिस्क़ा यानी बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी जा रही है। 18, 19, 20 हफ्ता इतवार पीर सुबह 8 बजे ठीक नमाज अदा की जाएगी और 7:15 से उलमाए कराम के बयानात भी होंगे, आप उसमें शिरकत फरमाएँ। और ये क्यों जो है बारिश रोकी जाती है, हदीसों में आता है कि ज़कात को रोकने से बारिश रोकी जाती है। अगर चरिंदे परिंदे ना होते तो एक क़तरा भी जो है बारिश ना बरसती। तो इसलिए सब मुसलमान अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपने अपने मालों की ज़कात निकालेंगे। जो अब तक अधूरी है नहीं निकाले वो भी मुसम्मम इरादा करें और हमेशा के लिए इरादा करें कि इंशाअल्लाह ज़कात नहीं रोकेंगे, ताकि हम सबब ना बने बारिश को रोकने का। और दूसरा, नाप तोल में कमी ना करेंगे कि नाप तोल में डंडी मारने से जिसका जो हक़ है वो हक़ अदा ना करे तो उसकी वजह से भी बारिश रोकी जाती है। और तीसरा काम हमें इस्तग़फ़ार करना है कि अपने गुनाहों को जो है माफ़ी अल्लाह से चाहना। अगर हम अल्लाह से गुनाह की माफ़ी चाहेंगे, अल्लाह ने खुद फरमाया वयरसिलुस्समा अलैकुम मिदरारा, कि तुम तौबा इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला जो है आसमान से पानी बरसाएंगे, बारिश नाजिल होगी। तो हर मुसलमान आज ही से तौबा इस्तग़फ़ार में लग जाए। रोज़ाना कम से कम 500 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े कि अल्लाह मेरे गुनाहों को देखकर मेरी वजह से दूसरी मखलूक को परेशान मत कर, मैं तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ, मुझसे जो भी गुनाह हुए तेरे सामने मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज ही से इस्तग़फ़ार का अहतमाम करें और खुशू खुजू के साथ तौबा का भी अहतमाम करें। और जितना हो सके पूरे जो है अपने अतराफ़ में इस बात को शेयर करें कि हफ़्ता इतवार पीर को बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी जा रही है। ठीक 8 बजे आप हज़रात शिरकत फरमाएँ।
इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात शिरकत फरमाकर दुआ के लिए इंशाअल्लाह हाथ उठाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। और नमाज़ पढ़ाने की जगह ईदगाह मुक़र्रर की गई है और ये मिन जानिब ईदगाह कमेटी और जमीउल उलमा हुफ़ाज़ की जानिब से इंतज़ाम किया जा रहा है। आप हज़रात जो है ज़रूर शिरकत फरमाएँ ईदगाह मैदान ज़हीराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी बरादरान इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि मौसम साज़गार ना होने की वजह से जो भी मौसम मुवाफ़िक़ नहीं होता आम लोगों के, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी की अलामत होती है। ये मौसम बारिश का मौसम है, इसके बावजूद एक लंबे अरसे के बावजूद बारिशें नहीं हुई हैं खातिर खा, जिससे किसान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है। और किसानों का परेशान होना गोया सभी का ज़रई एतबार से पूरे रियासत का इलाक़े का परेशान होना है। इसलिए उलमा और ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार हज़रात का ये बाहमी मशवरा हुआ जिसमें ये बात तय की गई है कि 18, 19, 20 जुलाई 2026 हफ़्ता इतवार पीर नमाज़ इस्तिस्क़ा का अहतमाम किया जाएगा ईदगाह मैदान में। इसीलिए सभी बरादरान इस्लाम से ज़हीराबाद के अतराफ़ अकनाफ़ और ज़हीराबाद के सभी मुसलमान हज़रात से गुजारिश है कि वो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और बड़ी तादाद में शहर से भी और देहातों से भी बड़ी तादाद में दोस्त अहबाब के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, मुमकिन हो तो जानवरों के साथ बावज़ू होकर तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मुतवज्जह होगी और बारिशों का नुज़ूल हो सकता है। और बारिशें और मौसम मुवाफ़िक़ नहीं होने की जो वजूहात होती हैं वो गुनाहों की कसरत, ख़ास तौर पे कबीरा गुनाहों की कसरत। इसलिए हम सब को गुनाहों से बचने का मुकम्मल एहतमाम करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करना चाहिए। गुनाहों से माफ़ी और कसरत से इस्तिग़फ़ार ही अल्लाह की रहमत को मुतवज्जह करने का ज़रिया, ख़ुसूसियत के साथ बारिशों को मुतवज्जह करने का ज़रिया होती हैं। इसलिए हम सब को इसका एहतमाम करना चाहिए। ठीक 7:15 साढ़े 7 के दरमियान से हिदायती बयान रहेंगे उलमा के और 8 बजे इंशाअल्लाह बराबर वक़्त पर जमात अदा की जाएगी और इज्तिमाई दुआ रिक़्क़त अंगेज़ दुआ भी होगी। इसलिए सभी हज़रात अपनी ज़रूरत समझकर वक्त मुक़र्ररा पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ईदगाह मैदान ज़हीराबाद में ये नमाज का अहतमाम है। उलमा और ईदगाह कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़िम्मेदारी उठाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबिक़ वज़ीर और कांग्रेस पार्टी ज़हीराबाद असम्बली हलक़े के इंचार्ज डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कहा है कि वोटर लिस्ट की ख़ुसूसी नज़रसानी SIR के अमल में किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पार्टी कारकुनों पर पूरी जिम्मेदारी और चौकसी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। इन्होंने कहा कि मंडल सदर, सरपंच, बूथ लेवल एजेंट्स और पार्टी कारकुन घर घर जाकर अहले वोटरों की तफसीलात की जाँच करें और किसी भी खामी या गलती से बचने के लिए BLOs के साथ मुसलसल रब्ता और मौसर हम आहंगी बरकरार रखें। डॉक्टर चंद्रशेखर ने जोर देते हुए कहा कि शफ़ाफ, दुरुस्त और बेऐब वोटर लिस्ट की तैयारी जमहूरी अमल के लिए नहायत ज़रूरी है। लिहाजा तमाम कारकुन इस मुहिम में भरपूर ताउन करें और हर अहले वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की यकीन दहानी कराएं। ఓటర్ లిస్ట్ నమోదు కార్యక్రమంలో భాగంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు PCC అధ్యక్షులు వారి ఆదేశాల అనుసారంగా ఈరోజు ఎలాంటి తప్పులు దొరకకుండా ఈ యొక్క ఓటర్ నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ముఖ్యంగా ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నాయో ఓటర్ జాబితాలో వారి పేర్లు నమోదు చేసుకునే క్రమంలో ఎలాంటి మిస్టేక్స్ రాకుండా, ఎలాంటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాకుండా చేసుకోవాలని చెప్పేసి మీకు అందరికీ మనది. దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు మన నియోజకవర్గంలో ఉన్న మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా సర్పంచ్లు, మరీ ముఖ్యంగా పార్టీ తరఫున ఉన్న BLAలు ప్రత్యేకంగా దీని మీద దృష్టి పెట్టి ప్రజలందరికీ కూడా ఒక్క ఓటు కూడా మిస్ కాకుండా అందరి ఓట్లు నమోదయ్యే విధంగా మీరందరూ కూడా కష్టపడి కృషి చేసి ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా ప్రతి ఓటరు నమోదయ్యే విధంగా చేయాలని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇది మనకు గతంలో ఉన్న తప్పులు దొరకకుండా, మిస్టేక్స్ రాకుండా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాకుండా BLOలతో సంప్రదించి వారికి ఇది అందజేసినట్లయితే
जलपल्ली सर्कल के डिवीज़न 64 वादी मुस्तफ़ा में महकमे बिजली के विजिलेंस टीम ने बकाया बिलों की वसूली के लिए कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद घरों का मुआयना किया। इस मौके पर BRS पार्टी माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट सैयद हुसैन मौके पर पहुंचे और विजिलेंस हुकाम से आवाम को बकाया बिल जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत देने की दरख्वास्त की। बादशाह मुतअद्दिद मुकामी अफराद ने अपने बकाया बिजली बिल जमा कराए और सैयद हुसैन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सैयद हुसैन ने रियासती हुकूमत और वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गरीब अवाम पहले ही बच्चों की तालीम, फ़ीस और दीगर माशी मसाइल से परेशान है। इसी में सख्त कार्रवाइयाँ आवाम पर मज़ीद बोझ डाल रही है। इन्होंने मुतालिबा किया कि महकमे बिजली मजदूरी करने वाले ख़ानदानों को बकाया बिल अदा करने के लिए मुनासिब मोहलत दे ताकि वो बग़ैर किसी इजाफी परेशानी के अपने वाजिबात अदा कर सकें। अभी बहुत फोन आ रहे हैं भाई, परेशान हो जा रही पब्लिक। हम लोग आपके लाइट वालों के साथ, आप पूछो, आप मतलब नहीं भी रहे हो तो हम लोग कोशिश करके जो है वेट कराते हैं। इतना नहीं, तारों को भी 10 आया ना, 8 बनो, 7 बनो। काउंटर चल रहा होता है जी जी जी, जमजम पे इतना तो पेमेंट करो। कराता हूँ साहब, कराने लगाता हूँ साहब, वर्रा थोड़ा घरों पे चेकिंग। देखो स्पेशल पार्टी आया है जी, हम इधर विद्युत सौदा से दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी आया हाँ साहब, तो चलने दो। मेहरबानी साहब, पब्लिक परेशान हो रही है, मेहरबानी करो, हम आपको बनने लगा स्लम एरिया साहब। कल फिर लगाएंगे, कल फिर लगाएंगे। लगाओ साहब, थोड़ा चेकिंग आप 1 2 3 हाँ और नहीं साहब, 3 हम तीनों से मैं रिक्वेस्ट है जी साहब, कल कितने पूरा को पेमेंट कराएंगे, इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। हमारे से हो सकता है आपको अभी बताया ना, 5,000 अगर रहा उसका मिनिमम 3,000 तो बनाइए, 4,000 तो बनाइए। आप वादा दिए तो मैं जाता हाँ साहब, बराबर। अगर नहीं फिर आप बाद में मैं बोला नहीं, आप आपसे पूछो, हम लोग कब कराते हैं, नहीं कराते। पेमेंट कराएंगे वो तो आप यहाँ से चले जाएंगे। अच्छी बात सर, करा अब वादा देना, वादा था, वादा दे नंबर है ना। कल हम आगे इधर बैठेंगे, आदमी भी घूमते रहेंगे, पूरा पेमेंट कितना पेमेंट। हाँ साहब, करा दी। फिर ये बाद में भैया खैरियत, पूरा ठहर के नहीं, परवाह नहीं, सारा दिन टाइम देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर हमारे काम भी रहे तो छोड़ के बराबर हम पेट कराएंगे। हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ साहब, हम जो है तो दूसरा जगह चले जाते हैं। अच्छी बात साहब, अच्छी बात, चले जाते हैं, लेकिन कल मेरे की तरफ से पेमेंट अच्छी बात साहब, पेमेंट करो। ओके साहब, ठीक है। आप हमेशा भी लॉन्च कराते साहब, ग्रुप में बोल के हमारे लीडर साहब है ऑलरेडी पेड करने लगाते रहते साहब, बोलते पूरा बनो बोल के उन्होंने बनने लगाते पूरे मिल गए। अब आप चले आ रहे हैं यहाँ से भी, कल आएंगे। ओके साहब, कल देखते ऐसा नहीं, हम भी आपको खाली बोल दे रहे, इंशाल्लाह हम कल जबान भी दे रहे, आपको कल पेड करने लगा। कल करना, अच्छी बात साहब, ओके। पुराना बच्चा अपना। अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ी शरीफ के एरिया डिवीज़न 64 में जो है तकरीबन यहाँ पे जलपल्ली को आता है एरिया, इससे मैं माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट BRS पार्टी सैयद हुसैन बोल रहा हूँ। आज मीडिया में आने का हमारा मकसद ये है कि कल जो है हमारे बस्ती वादी मुस्तफ़ा में लाइट वालों की टीम जो है, विजिलेंस टीम जो है यहाँ पर मुदाखलत करते हुए, क्योंकि यहाँ के लोगों के बिला पेंडिंग बता रहे रीज़न आने का, मगर वो बताते हुए जो है घरों में घुसकर जो है चेकिंग कर रहे हैं, चालाना भी डाले। तो इसके लिए जो है मैं मौके पे वहीं मैं जाकर पहुंच के जो है DE से बात करा, DE और उनकी सारी टीम थी मौजूद फील्ड पे। तो बात करके जो है उनसे मैं मतलब पब्लिक के मतलब घरों में जो है चेकिंग करने से बेहतर है कि हम एक जिम्मेदारी लिया कि मैं पब्लिक की जो है बुला के आप रीजन बता रहे आने का कि लाइट के बिला नहीं बन रहे, 6 महीने के 8 महीने के बिला है बोल के बोल रहे हैं। ये स्लम एरिया है पूरा, यहाँ पे गरीब लोग हैं, किसी के कोई शादी को लेके परेशान है बच्चियों की, तो कोई जो है कर्जे कर लेके परेशान है, तो किसी का कारोबार नहीं है, कोई स्कूलों की फीस को लेके परेशान है। अब उसमें जो है उसकी वजह से जो है बिना लोगों के 3 महीने 4 महीने के हो जाते। इंशाल्लाह हम हुकूमत से तो हम इतना तो उम्मीद रख सकते हैं कि हम गरीब हमारे एरिया स्लम एरिया में जो है पब्लिक का जो है थोड़ा तो मदद करेंगे, बल्कि तो हम जो है उनसे बात करके ये तयखुन दिए कि हम काउंटर पे आपको बिल जो है बनने लगाएंगे। जैसा कोई 10,000 है तो हम 5 तो भी बनाएंगे, 6 तो भी बनाएंगे, बल्कि कोशिश चल रही है हमारी। मगर फिर जो है कल साहब तो बोले नहीं आएंगे बल्कि DE साहब, मगर फिर आज उनकी टीम जो है फिर आकर घरे घर फिर रही, जबकि कल हम आपको तयखुन दिए थे कि हम नहीं आते, बल्कि आप लोग बिला बनाओ, बल्कि हम हमारा वादा, हम और हमारे दूसरे भी लोग हैं मिलकर हम हमारा वादा पूरा करें। हम मस्जिदों में ऐलान कराए, हम काउंटर पे बिल बनाने लगा रहे हैं, आप मीडिया के जरिए देख सकते।
हम ये चीज़ करा रहे हैं, मगर फिर जो है आज फिर जो है चेकिंग बोलने के बावजूद भी घरे घर जाके फिर चेकिंग कर रहे हैं। तो हम गुजारिश कर रहे हैं तेलंगाना हुकूमत से, हम जो है रेवंत रेड्डी से हम गुजारिश कर रहे हैं कि पब्लिक पे जो है इतना भी जुल्म ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लम एरिया है, स्लम एरिया में पब्लिक बहुत परेशान रहती है। आपको खुद मालूम है, आप ये तेलंगाना की हुकूमत में जो है पब्लिक कांग्रेस की हुकूमत में परेशानियों से दो चार है। तो वो हिसाब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इतना भी जुल्म जो है आप पब्लिक पे ना करें। और हम सविता इंदिरा रेड्डी मैडम साहिबा से हम गुजारिश करते हैं कि ये लेट वालों पे आप जो है सख्त जो है बैठ के इनसे बातचीत करें, बातचीत करके इनसे कि मतलब एक पब्लिक को राहत पहुंचाइए। हम सविता मैडम से हम गुजारिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 वर्जन के तहत रियासत का हदफ 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाना है। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी व शहरी एन उत्तम कुमार रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज रियासती सेक्रेटरीट में पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत मुख्तलिफ एक आला सतही इजलास की सदारत की। नई दिल्ली में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर और शहरी राम मोहन नायडू से मुलाकात करते हुए वरंगल और आदिलाबाद में आलमी मियार के हवाई अड्डे तामीर कराने की दरख्वास्त की। तेलंगाना में जारी वोटर नज़रसानी मुहिम खुसूसन हैदराबाद के 15 असम्बली हलकों में सुस्त रफ्तारी से जारी है और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए वोटर नज़रसानी की मुद्दत में तोसी का मुतालबा किया। बोनालू त्यौहार के लिए हैदराबाद पुलिस अलर्ट, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने हिदायत दी। नाज़रीन, ये थी हमारी दिन भर की आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।